بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 7 ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب پیش کر رہے ہیں رقص جنوں، مصنف بشرا سعید، آواز ہیرا مجید کی۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0300291960، واٹس ایپ نمبر 0333249537 پر محمد اظہر لطیف سے۔ معزز سامعین، تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 7 صفحہ نمبر 71 سے۔ تمہارے ٹیڈی کو تو پتہ چل جائے گا؟ ہاں، پتہ تو انہیں چل ہی جائے گا۔ میں کہہ دوں گا کہ تم میری دوست ہو، بس انہیں یہ معلوم نہ ہو۔ اس نے ایک لمحہ توقف کیا۔ ایک بہت خاص بات جاسیہ، وہ اس کی آنکھ میں دیکھ کر بولا، تم خود کو مسلمان ظاہر نہیں کرو گی، تم کرسچن بن کر رہنا ہوگا۔ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میں یہ کیسے کروں گی؟ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی۔ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میں یہ کیسے کروں گی؟ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتی۔ اس کی آواز قدرے بلند ہو گئی تھی۔ تم سچ مچ کرسچن تو نہیں ہو رہی ہو؟ ظاہر ہے میری کزن ہو، مسلم تو نہیں ہو سکتی۔ تمہاری کزن مسلم نہیں ہو سکتی، دوست تو ہو سکتی ہے نا۔ کزن والی بات کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تم سمجھ نہیں رہی ہو۔ مسلم لڑکی کرسچن لڑکے کی دوست ہوگی تو لوگوں کا اعتراض ہوگا۔ ہم آزادی سے مل نہیں سکیں گے۔ تم میرے گھر آؤ گی، لوگ دیکھیں گے، کوئی متعصب ملا تو اٹھ کر میرے گھر کو آگ لگا دے گا۔ تمہیں لعنت ملامت کیا جائے گا، نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ تم ابھی بہت کم عمر ہو، تمہیں صورتحال کا صحیح اندازہ نہیں ہے۔ ہم بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے۔ وہ مطمئن نہیں ہو سکی لیکن خاموش ہو گئی۔ میں نے تمہاری خاطر اپنا مذہب چھوڑ دیا، اس سے بڑھ کر بھی میری محبت کا کوئی ثبوت ہو سکتا ہے؟ اسے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر وہ بولا۔ جاسیہ نے جھکا ہوا سر اٹھایا۔ مجھے کرسچن بن کر ہی رہنا ہے تو کزن کیوں، بیوی کیوں نہیں؟ اونل نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کی ناسمجھی سے عاجز آ گیا ہو۔ بات وہیں آ کر رک جاتی ہے۔ ڈیڈی میری شادی اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں، میں فی الحال انہیں ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ ایک بار ریسٹورینٹ مکمل ہو جائے پھر ہمیں کسی کی خفگی سے مطلب نہیں ہوگا۔ تمہارا نام کیا رکھا جائے؟ میرا نام بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ کرسچن لڑکیوں کے نام بھی ایسے ہوتے ہیں، میرا مطلب ہے مسلم لڑکیوں جیسے سائرہ، فاطمہ وغیرہ نہیں۔ اونل نے اسٹیئرنگ کو انگلیوں سے بجایا۔ نام ایسا ہونا چاہیے جسے سن کر لگے کہ تم سب کرسچن ہو۔ اینگیسیا، جولیا، اینجلا۔ اس نے جاسیہ کے ستے ہوئے چہرے پر نظر جمائی۔ میری کیسا رہے گا؟ اس نے بے جان انداز میں سر ہلا دیا۔ اونل کا گھر قدیم اور جدید طرز تعمیر کا امتزاج تھا۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ گھر بڑا ہوگا اور خوبصورت بھی، لیکن اس قدر خوبصورت ہوگا اسے اندازہ نہیں تھا۔ کسی قدر حویلی اور جدید بنگلے کو یکجا کر دیا گیا تھا۔ عمارت کے دونوں اطراف میں مرغول دار برآمدے تھے جنہیں بلند ستونوں سے سہارا دے رکھا تھا۔ سنگ سرخ کی پیچوا سیڑھیاں بلائی منزل کے شکم سے وسیع لان میں اترتی تھیں۔ وسط سے سنگین روش کے ساتھ ساتھ گل بکاولی کے پودے، کسو اور ریزینا کے تختے تھے۔ عشق پیچا نے پوربی دیوار کے سینے سے لپٹ کر اسے سبز چادر اڑا رکھی تھی۔ لان کے ایک گوشے میں مختصر سوئمنگ پول تھا جس کے گرد چندنا اور مور پنگ کے پودے گھیرا ڈالے کھڑے تھے۔ پورٹیکو کے سرخ چھجے پر شہدہ شام کی بیل بچھی ہوئی تھی۔ اونیل کے بیڈ روم کی کھڑکی کے ساتھ ایک فلیم ٹرے استادہ تھی۔ پھولوں کا موسم ابھی دور تھا لیکن اسے معلوم تھا کہ فلیپ ٹری پر جب دہکتے انگاروں جیسے پھولوں کے جھرمٹ اترتے ہیں تو وہ کیسا انوکھا نظر آتا ہے۔ روانگی سے پہلے اونل نے اسے ڈھیروں شاپنگ کروائی تھی۔ اس کے لیے تمام لباس اس نے خود پسند کیے تھے۔ اسے بوتیک سے خریداری کرنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ اونل نے جو بھی منتخب کیا وہ تائید کرتی گئی۔ ایک اندازہ سے ہو گیا تھا کہ اونل کو گہرے رنگ اچھے لگتے ہیں، اس کے لیے خریدے گئے سارے کپڑے میں یہ خصوصیت مشترک تھی۔ اسے گھر دکھانے کے بعد اونل نے سوٹ کیس میں سے ایک سیاہ ساڑی نکال کر اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ یہ پہن کر آؤ، جلدی کرو۔
लेकिन जल्दी करो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सर के नीचे हाथों का तकिया बनाते हुए वो दराज हो गया। ये तो शायद गर्मियों में पहनने के लिए है, इसने बे आस्तीन के मुख्तलिफ ब्लाउज को देखकर कुछ झिझकते हुए कहा। सर्दी गर्मी तक का तो सवाल ही नहीं, हम कहीं बाहर नहीं जा रहे, ये सिर्फ मेरे लिए पहनोगी तुम, जल्दी जाओ, मैं तुम्हें इस साड़ी में देखने के लिए बेचैन हूँ। वो एक तवील सांस भरकर बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद जब वो बाहर आई तो ओनिल की निगाहें इस पर जमी की जमी रह गईं। वो संगे मरमर से तराशे हुए बाहें फैलाव में बल खा रही थी। धूल पर मुड़े चमड़े जैसा तना हुआ घने सिया बाल दूधिया शानों पर इसे झुके थे जैसे बादाम के शगुफों भरे बागात पर अब्रिंसा मंडलाता हो। लजाई हुई आंखों में नमी तैर रही थी। बहुत देर तक ओनिल कुछ बोल नहीं सका। मुझे इस लम्हे पर एतबार नहीं आता, तुम इतनी खूबसूरत हो के इस जमीन की लगती ही नहीं हो। मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। वो छोटे छोटे कदम उठाती इसके करीब आ गई। इसका हाथ थामकर ओनिल ने इसे पहलू में बिठा लिया था। इसके कानों की लोर सुर्ख हो गई, बोछल पलके गालों से चिपक कर रह गई थी। ओनिल इसकी तारीफ कर रहा था, इसे बता रहा था कि वो इससे कितनी मोहब्बत करता है। सारा कमरा ओनिल के वजूद से भर गया था। दीवारों पर इसकी आंखें रेंग रही थी। इसके होठों के अनगिनत अक्स दर्द बाम पर बिखरने लगे थे। हवा में इसकी सरगोशियां तैर रही थी। इसकी महक सांसों में घुली जाती थी। जासिया को इसके सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो किसी ऐसे बैतुल अनकबूत में उलझ गई थी जिसके लचकीले तार खुशबू से बने हुए थे। वो चंदन के जंगल में थी, खुशबू के गर्दाब में फंसी थी। इसे कुछ याद नहीं था ओनल के सिवा। वो सब भूल गई थी। वो एक पुजारन थी जो देवता के सामने शेष नवाए बैठी थी। इस बार वीकेंड पर जब वो कंगनपुर गई थी तो अब्बा ने इसे गर्म कपड़े खरीदने के लिए कुछ पैसे दिए थे। सदफ से साथ चलने को कहा तो थोड़ी सी पसोपेश के बाद वो रजामंद हो गई। इसे भी चंद चीजें खरीदना था ना। छुट्टी वाले दिन वो दोनों मतलूबा अशिया को फहरिस्त बनाकर बाजार चली गई। मौसम बदल रहा था। धूप की पहले वाली तंदी बरकरार नहीं रही थी। सुबह और शाम के वक्त हवा में खफीफ सी ठंडक होती थी। चारपाइयां जो रात को बरामदे में एयर कूलर के सामने बिछाई जाती थी अब कमरों में मुंतकिल हो गई थी और छतों के पंखे धीमे रफ्तार से घूमते थे। वो 10 बजे घर से निकली थी और बाजार में चकराते चकराते एक बजने वाला था, लेकिन हवा में तपिश नहीं थी। थकन भी कोई खास महसूस नहीं हो रही थी। तहम आयशा आज के तजुर्बे से बददिल हो गई थी। सदफ के साथ खरीदारी करते हुए वो मुसलसल खौफ में मुब्तला थी। कोई एक छोटी सी चीज पसंद करते हुए वो 10 दुकानों पर भटकती और कीमत पर दुकानदारों से इतनी सख्त अल्फाज में बहस करती कि आयशा को खतरा महसूस होने लगता कि दुकानदार इन्हें धक्के देकर न निकाल दे। लेकिन सदफ दुकानदारों की खशमगी नजरों को खातिर में लाए बिना कीमत में झगड़े जाती और इसके बताए हुए पैसों में से 1 रुपये भी जायद तलब किया जाता तो चीज दुकानदार के मुंह पर मारकर पैर पटकती हुई वहां से उठाती। नीली टाइलों से बनी हुए गोल फवारे के करीब जो गर्द की जमी हुई तहो और इर्द गिर्द रेड़ियों ठेलों के झुमगटे के बाईस मेला एक किसी हद तक बदय्यत दिखाई दे रहा था। सदफ एक रेड़ी वाले से सेबों की कीमत पर झगड़ा कर रही थी और आयशा इससे खासी दूर यूं खड़ी थी जैसे इसके साथ न हो। शाल और गरम कपड़ों वाले शॉपरों को एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल करते हुए इसे अपने कंधों पर किसी के हाथ का दबाव महसूस हुआ तो वो मुड़ी। आंखों पर सियाह गॉगल्स लगाए खुले बालों के साथ मेरी इसे देखकर मुस्कुरा रही थी। बहुत शॉपिंग की है तुमने, अकेली आई हो? इसके जवाब देने से कबल सदफ आ गई। वो भी मेरी को देख चुकी थी और इसलिए बहस मुलतवी करके होठों पर मसनूई मुस्कुराहट चिपकाए आ गई थी। आपकी गाड़ी कहाँ है? सदफ ने दाएं बाएं निगाहें दौड़ाई। मैं तो रक्शे में आई हूँ। गाड़ी अभी कहाँ चलानी आती है मुझे? ओनिल से सीख रही हूँ।
शायद जल्दी ही तुम लोग बाजार आने जाने के लिए मेरी खिदमत से इस्तेफादा करो। अच्छा, मैं तो समझी अब अनिल भाई के साथ होगी। सदफ को मायूसी हुई। बस स्टॉप तक लिफ्ट मिलने की उम्मीद दम तोड़ गई थी। मैं रेस्टोरेंट तक जा रही थी, तुम लोगों को देखकर यहीं रक्षा रुकवा लिया। चलो तुम दोनों भी मेरे साथ ही चलो, लंच का वक्त हो रहा है। रेस्टोरेंट में एक नई डिश इंट्रोड्यूस करवाई गई है। शवरमा खासी मजेदार किस्म की चीज है। आज इसे ट्राई करके देखो, मुझे तो बहुत पसंद है। ये शवरमा होता क्या है? सदफ ने दिलचस्पी से जाहिर की। ये तो मुझे भी ठीक तरह से मालूम नहीं, बस यूं समझ लो कि ज्यादा खटाई, क्रीम और सलाद के साथ एक तरह का चिकन बर्गर। इसने मुस्कुराकर साथ बताया। आयशा इस सारे जिक्र से लाताल्लुक खड़ी बार बार चादर दुरुस्त करने में मसरूफ थी। तुम्हारा क्या प्रोग्राम है आयशा, चलोगी? मेरी ने इससे पूछा तो वो एक लम्हे के लिए गड़बड़ा गई। नहीं जी, हमें बड़ी देर हो गई है घर से निकले हुए। प्लीज भाई चलो आयशा, तुमने तो मेरे कजन का रेस्टोरेंट देखा ही है ना? देखा ही नहीं, बड़ी शानदार जगह है। मैं यकीन दिलाती हूँ तुम वहाँ के माहौल और खाने को एंजॉय करोगी। अभी जाकर मुझे खाना ही बनाना है, देर हो जाएगी, रहने दीजिए। तुम ही कहो आयशा से, शायद तुम्हारी बात मान जाए। इसे गुरेजा देखकर सदफ से मुखातिब हुई। मैं क्या कहूँ, आयशा की मर्जी है। सदफ ने इनकार करने की बजाय बात इस पर डाल दी थी। यहाँ से बिल्कुल नजदीक है, कोई ज्यादा चलना नहीं पड़ेगा और मैं अनिल से कह दूंगी, वो तुम लोगों को बस स्टॉप तक छोड़ाएगा। आयशा तुम तो मिन्नतें करवा रही हो, मेरी ने लहजे में नाराजगी समूह कर कहा था। इसने मदद तलब नजरों से सदफ को देखा, मगर वो इसकी तरफ देख ही कब रही थी जो इसकी कोई मदद करती। इतना इसरार कर रही है तो मान जाओ आयशा, इस तरह बीच बाजार खड़े हम क्या अच्छे लग रहे हैं? हमें देर हो जाएगी। मैं तो होटल का खाना खाती ही नहीं। इसने एक और कोशिश कर देखी। बस तुम थोड़ी देर बाद बैठ कर चली जाएगी। देर कैसी? शॉपिंग करते हुए तो सुबह से शाम हो जाती है, सब जानते हैं। इससे नजरें मिलाए बिना सदफ बोली, वो कोई ऐसा वैसा होटल नहीं है। बिल्कुल मेरा दावा है कि तुम एक बार वहाँ का खाना खाकर बार बार जाने की ख्वाहिश करोगी। मेरी एक खाली रक्शे को आते देखकर रुकने का इशारा करने लगी। रक्शे पर ही चले जाते हैं, पहले ही थकी हुई लग रही हो। पैदल जाने वाला आइडिया मंसूख कर देते हैं। इन माने जी से आयशा के साथ रक्शे में बैठ गई। इसे सदफ का फौरन दावत कबूल कर लेना अच्छा नहीं लगा था। रेस्टोरेंट वाकई मेरी के बयान करदा खाके के एन मुताबिक था। जिद्दत के सब हथियारों से लेस एक नुमाइश कदा। शहर के बेफिक्री इमरा कीमती फर्नीचर और बरामजमान नफीस क्रॉकरी के अंबार सामने रखे। मुतफर्रिक रंगों के मशरूबात सजाए खुश कप्पियों में महू थे। इनमें से बहुत कम थे जिन्हें भूख मिटाने से दिलचस्पी थी। नखवत से लुकमा तोड़ती निमुलियां और गदूर से लटकते खुलते बंद होते होंठ खाने पीने से शगफ ना रखते थे। इन्हें अपनी दौलत और मर्तबे का इजहार मकसूद था। फिजा में एक बेउनवान सी घुटन थी जैसे आयशा शिद्दत से महसूस कर रही थी। इस अजनबी माहौल में इसका दिल बुरी तरह घबरा रहा था। चिकने चमकदार फर्श पर कदम नहीं जमते थे, पांव फिसल कर जाते थे। सुमलाख दीवारों में बेशुमार आईने चुमे गए थे। हर अक्स एक बुत था। लोग अपनी छवियों को पूज रहे थे। खुद परस्ती के पैरोकार अपने दीन का प्रचार कर रहे थे। मेरी ने इन्हें एक खाली टेबल पर बिठा दिया था। यहाँ के मुलाजिमीन इससे अच्छी तरह वाकिफ थे। यकीनन वो अक्सर यहाँ आती रहती थी। एक बार वर्दी वेटर से मशरूबात लाने के लिए कहकर वो इन्हें रेस्टोरेंट के मुतालिक बताने लगी। शाम को यहाँ आने का अपना ही लुत्फ है। लॉन में बारबेक्यू का इंतजाम होता है। फैमिलीज भी अमूमन इसी वक्त आती हैं। अब तुम ज्यादातर मर्द हजरात ही नजर आ रहे हैं। खूबसूरत मलबूसात का मुकाबला और मेकअप टेक्निक्स पर मुबाहिसा यहाँ रात के वक्त होते हैं। सदफ हंसी। गैर महफिल तो इसी वक्त भी चुप फीकी नहीं है। बड़े रंग नजर आ रहे हैं। जरा अपने पीछे एक नजर डालिए। मेरी ने गर्दन मोड़कर देखा। छुपते हुए करमजी रंग की कमीज और सफेद पतलून में मलबूस गोरा चिट्टा खूश शक्ल नौजवान, जिसके एक कान में बाली थी और गले में मोटी तलाई जंजीर, होठों में सिगरेट दबाए टांग पर टांग चढ़ाए इन्हीं की जानिब मुतवज्जा था। मेरी ने केकिया लगाया।
चॉइस की दाद देनी पड़ेगी। ऐसा रंग मुंतखब किया है कि देखने वालों की आंखें चुंधी आ जाती हैं। मानना पड़ेगा, इस पूरे डाइनिंग हॉल में ये बंदा सबसे नुमाया है। मेजों के दरमियान इतना फासला नहीं था कि वो लड़का मेरी का तबसरा ना सुन पाता। इसके चेहरे पर फैलते इज़्तिराब को भांप कर वो दोनों खिलखिला रही थी कि ओनिल 3 लड़कों को साथ लिए आ गया। आयशा के आसाब तन गए। वही जिस्म को छेदती हुई निगाहें इसे घेरे में ले चुकी थी। ओनिल इसके एन सामने कुर्सी पर जम गया। मेरी इन लड़कों का तारुफ करवा रही थी। ये शिराज है, ओनिल के दोस्त। ये उमानुइन हैं और इन्हें भी दोस्त ही समझो, कभी कभी दुश्मनी भी कर जाते हैं। इसके कहने पर उमानवी मुस्कुरा दिया था। और ये जो ख्वामख्वाह मुस्कुराए जा रहे हैं, इनका नाम काशफ है। ये ना तो दोस्त है ना दुश्मन, अलबत्ता इनसे थोड़े बहुत मरासिम जरूर हैं। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना ओनिल? इसने ओनिल की तायीद चाही। इस दम वेटर ने मशरूबात लाकर मेज पर रख दिए। ओनिल ने इसे और कोल्ड ड्रिंक लाने की हिदायत दी थी। आयशा की नजरें मेज की सतह से फर्श पर और फर्श से लोगों को जूतों पर भटक रही थी। इसका जी उठकर भाग जाने को चाह रहा था, लेकिन सदफ इसका साथ देने पर आमादा नहीं थी और वो ओनिल और इसके साथ आए हुए लड़कों से रस्मी सवालों के मुफस्सिल जवाब देने में मशगूल थी। आपकी फ्रेंड बहुत खामोश है, शायद हमारी आमद इन्हें अच्छी नहीं लगी। ओनिल ने अर्गवानी रंग के चमकीले मशरूब का गिलास आयशा के करीब खिसकाया और बराह रास्त इसे मुखातिब करके बोला, ये हमारे रेस्टोरेंट का सबसे उम्दा मशरूब है। मैं आपके कमेंट्स सुनना चाहता हूँ। इसका हाथ सख्ती से मेज के किनारे पर जम गया। नजरें उठाए बगैर भी इसे एहसास था कि वो सब इसी को देख रहे थे। एकदम वो कुर्सी से उठ गई। सदफ, चलो बहुत देर हो गई है। क्या हुआ आयशा? मेरी ने हैरत से पूछा। अभी तो 10 मिनट भी नहीं हुए हमें आए हुए। नहीं जी ताई जान नाराज होंगी। कल रात से इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। कुर्सी खिसकाकर वो चल पड़ी। सदफ को इसकी हरकत पर सख्त ताव आ रहा था, लेकिन उठे बगैर चारा नहीं था। दिल ही दिल में वो पेचो ताप खाते हुए इन लोगों से माजरत करके वो उठ गई थी। ओनिल को ना जाने क्या हुआ, वो तेज कदम से चलता हुआ आयशा के करीब पहुंच गया। ये तो आप अच्छा नहीं कर रही मिस आयशा। कुछ देर हमें कंपनी दे देती तो हम इसे खुशनसीबी तस्वुर करते। चलिए वापस अपनी नशिस्त संभालिए। खाना खाए बगैर आपको जाने नहीं दिया जाएगा। लजाजात से बोलता हुआ वो इसके सामने आ गया। बहुत सी गर्दनें इसकी जानिब मुड़ गई थी। आयशा ने इसके चमकदार जूतों को देखते हुए रुख तब्दील किया और इसके करीब से गुजर गई। इस तरह उठकर जाना आदाब के खिलाफ है। आपको उल्टे कदम पीछे हटते हुए ओनिल का पांव एक कुर्सी से उलझ गया था। खुद को संभालने की भरपूर कोशिश के बावजूद दूर दूर तक लड़खड़ाता चला गया। कुर्सी का सहारा लेने की कोशिश में इसका हाथ मेज पर रखे कांच के जग से टकराया था और जग फर्श पर गिरकर किरचियों में बट गया था। इर्द गिर्द की मेजों पर बैठे लोग हंस रहे थे। दबे दबे के कहे हवा में भंभनाए लगे थे। आयशा ने इसके खजालत से सुर्ख चेहरे को खौफजदा नजरों से देखकर गिलास दौड़ धकेला और तेजी से बाहर निकल आई। ओनिल की आंखों में जो कैफियत नजर आई थी वो इस पर बदहवासी तारी कर रही थी। ओनिल ने इसे कॉलेज में एडमिशन दिला दिया था। इसके तमाम डॉक्यूमेंट्स पर नाम के खाने में मेरी वेलमेंस दर्ज था। नए नाम से मानूस होने में इसे बहुत दिन लग गए थे। शुरू में जब कोई इसे मेरी कहकर पुकारता तो वह बेध्यान बैठी रहती। दूसरी या तीसरी पुकारने पर चौंक कर मुतवज्जा होती। हॉस्टल में 4 लड़कियां एक कमरे शेयर करती थी, लेकिन ओनिल ने अपने ताल्लुकात के बल बोते पर इसे एक अलग कमरा ले दिया था। इसके कमरे की आराइश देखने से ताल्लुक रखती थी। ओनिल ने इसके एक कमरे को सजाने के लिए इतना पैसा खर्च किया था कि शायद इनके पूरे घर में इतनी माहियत का सामान नहीं होगा। इसके पास इतने लिबास थे कि रोजाना नया लिबास पहनती तो भी महीनों किसी लिबास को दोबारा पहनने की नौबत नहीं आती। इसे जितने भी पैसों की जरूरत होती ओनिल बिना किसी पूछगछ के इसके हवाले कर देता। वो ना भी मांगती तो कुछ दिनों के वक्फे से वो अच्छी खासी रकम इसे दे देता। वार्डन इसके साथ इम्तियाजी सलूक करती थी। अगर वो कभी पूरी रात भी हॉस्टल से गायब रहती तो इसके माथे पर बल ना पड़ता। कुछ ही अरसे से लड़कियां इससे मरूब हो गई थी। इसका पहनावा, शख्सियत की तमकीनत और मामारत लड़कियों को इसकी जानिब मुतवज्जा करने का मौजिब था। मुख्तलिफ हुलिये बहानों से लड़कियां इसे कमरे में आन बैठती, इसके साथ दोस्ती की कोशिश करती। इसने कभी किसी को अपने कमरे में आने से मना नहीं किया था, लेकिन सब इससे एक मखसूस फासला बरकरार रखता था।
ऑनिल इससे मिलने के लिए आता तो लड़कियां रक्श और हसरत में डूबकर ठंडी आह भरती, चमक होती इसकी तरफ उंगलियां उठाकर सरगोशियों में बातें की। ऑनिल के कदमों से कदम मिलाकर चलते हुए वो खुद को किसी अजीम उल शान सल्तनत की मलका तस्वुर करने लगती। ऑनिल की वरफंगियां इसकी चाहत इसके जिस्म में दौड़ते खून को पारों में ढाल देती। वो गोया हवा में तैरने पर कादिर हो गई थी। इतनी आसाइशें, ऐसी अहमियत इसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं पाई थी। वो बिल्कुल इसी तजुर्बे से गुजर रही थी जिससे तितली का पहल रूप तन रोशनास होता है जब इसके पर निकल आते हैं, जब वो एक फकीर कीड़े से लंबी उड़ानें भरने की अहल खुश रंग परवाह वाली तितली पर ढल जाता है। जासिया को लगा जैसे आसमान इसके कदमों में आ गया हो। पढ़ाई में इसका दिल नहीं लगता था। किताबें खोलकर बैठती तो औराक कोरे हो जाते। इस पर ऑनिल की आंखें, इसके होंठ मुर्तसिम होने लगते। लेक्चर सुनते हुए बार बार इसका ध्यान ऑनिल की तरफ चला जाता। टीचर इसकी बेतवज्जी पर डांटती तो वो महज मुस्कुराकर रह जाती। हर तीसरे चौथे दिन वो कॉलेज से छुट्टी करके इससे मिलने पहुंच जाती। लड़कियों में इसने मशहूर कर रखा था कि इसके रिश्तेदार कैंट में रिहाइश पजीर हैं। वो इनके यहाँ जाती है। इस कहानी पर आसानी से यकीन भी कर लिया गया था क्योंकि ऑनिल जब कभी इससे मिलने आता तो 4 लड़कियों के दरमियान फर्जी अंकल या आंटी का तस्करा छिड़ देता। रेस्टोरेंट तो वो तकरीबन रोज ही जाती थी। ऑनिल मौजूद न होता तो वो इसके बेतकल्लुफ दोस्तों शिराज, अमानवी वगैरह के साथ गपशप कर वक्त गुजार लेती। वक्त बिताना इसके लिए यूं भी दुश्वार था कि कॉलेज में इसकी दोस्ती किसी लड़की से नहीं थी। थोड़े बहुत मरासिम तो इसके अपने तमाम क्लास फेलोज और जूनियर क्लासेस के चंद लड़कियों से थे, लेकिन इसने एक खास हद मुकर्रर कर रखी थी और किसी भी लड़की को इस कदर हद से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देती थी। आयशा वो पहली लड़की थी जिससे पहली बार मिलते ही इसे एहसास महसूस हुआ कि इससे दोस्ती करने में कोई हर्ज नहीं। अजीब, डरपोक और बेजर किस्म की लड़की थी। सहमी हुई सी, बहुत कम को सारे दिन में वो इतने जुमले बोलती कि जासिया चाहती तो आसानी गिन सकती थी। जहाँ कहीं लंबे चौड़े दलाइल और तवील बहस की जरूरत होती वो एक आध फिकरा बोलकर काम चला लेती। जहाँ के कहे दरकार होते वो मुस्कुरा देती। शक्ल इतनी मासूम थी कि ख्वामखा प्यार आ जाता था। कस्तूरे के चमकीले परोग जैसी बड़ी बड़ी काली आंखें जिनसे हरदम सिया शौले फूटते थी। छोटी सी नाक जिसकी साख में ऐसी आमूदगी थी कि किसी संग तराशी की बरसों की रियासत लगती थी। गुलाबी गदास होंठ, मुख्तसर दिहाना, रंगत नारियल के गोदे जैसी शफाफ और उजली थी। बाल बहुत दराज थे, शायद घुटनों तक या इनसे कुछ नीचे। जासिया कभी भी इनकी सही लंबाई नहीं जान सकी थी। आयशा एक बेढंगी सी चुटिया बनाकर दुपट्टे से छुपाए रखती। खुद से हद दर्जा लापरवाह थी। जासिया ने दूसरी लड़कियों की तरह कभी इसे अपनी जिल्द के लिए, खूबसूरती के लिए परेशान होते नहीं देखा था। खुद को बनाने संवारने का तको दो वो कभी नहीं करती थी। खुद को दिखाने का, नुमाया करने का शौक इसे हरगिज नहीं था। इसके घरेलू हालात अच्छे नहीं थे। वो अपने ताया के घर रह रही थी। रोजाना कॉलेज आने और वापस जाने के लिए इसे टांगों और बसों के धक्के खाने पड़ते थे। इसके पास खर्च करने के लिए कभी पैसे नहीं होते थे। जासिया ने इसे कैंटीन से कभी कुछ खरीद कर खाते नहीं देखा था। कई दफा टांगे का किराया न होने की वजह से वो 3 किलोमीटर पैदल चलकर बस में आती थी, बस स्टॉप तक जाती थी। इसका यूनिफॉर्म मामूली कपड़े का था और पैरों में हमेशा एक भद्दी सी जूती होती। कॉलेज बैग के नाम पर मोटे कपड़े का सिला हुआ थैला कंधे से लटकाए फिरती। लेकिन इन सब बातों के बावजूद जासिया ने इसकी जबान से कभी शिकवा नहीं सुना था। वो अपने आप में मगन रहती।
اس کی آنکھوں اور چہروں سے مکمل اطمینان ظاہر ہوتا تھا۔ اللہ نے اسے بہت ساری چیزوں سے محروم رکھا تھا، مگر وہ ہر دم اس سے گن گاتی نظر آتی، سرتاپا اس کی محبت میں ڈوبی رہتی، اذان کی آواز سنتے ہی سیدھی ہو کر بیٹھ جاتی، ارد گرد بیٹھے لوگوں سے بالکل لاتعلق ہو جاتی۔ کئی بار اسے شک گزرتا کہ وہ سارا دن نماز کے وقت کا انتظار کرتی رہتی ہے۔ پورے دن میں واحد وقت جب اس کے چہرے پر واضح مسکراہٹ نظر آتی ہے نماز کا وقت تھا۔ اس نے کبھی کسی کو اتنی خوشی سے نماز ادا کرتے نہیں دیکھا تھا۔ زمین پر گرا ہوا کاغذ کا کوئی ٹکڑا دیکھ کر وہ فوراً اسے اٹھاتی اور اچھی طرح دیکھ کر کسی شاخ یا دیوار کی کسی درز میں اٹکا دیتی۔ کئی بار وہ کاغذ اپنے بیگ میں بھی ڈال لیتی تھی۔ پہلے پہل جاسیہ اس کی عادت سے سخت نالا ہوتی، لیکن آہستہ آہستہ اسے عادت ہو گئی۔ ایک دو دفعہ پوچھنے پر عائشہ نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نہ لکھا ہو۔ اسے کہیں سے ایک طرح سے ہمدردی سی ہو گئی تھی، حالانکہ وہ دکھی نہیں تھی اور اسے ہمدردی کی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی جاسیہ کو لگتا تھا جیسے وہ محروم اور قابل رحم ہے۔ وہ عائشہ سے اپنا موازنہ کرتی تو ہر لحاظ سے خود کو برتری پاتی۔ عائشہ کے پاس اعتماد تھا، نہ دولت، نہ اہمیت، اور شاید محبت کی میسر نہیں تھی۔ وہ ایسی جگہ شادی کرنے پر رضامند تھی جہاں اس کے والدین چاہتے، جبکہ جاسیہ کے پاس یہ سب چیزیں تھیں اور وہ اپنی خوشی قسمتی پر نازا تھی۔ عائشہ کالج کی کسی تقریب میں شرکت کرنے کی حامی نہ بھرتی، کہیں باہر جانے کے لیے تیار نہ ہوتی، اور کہیں دفعہ وہ ہاسٹل میں اس کے کمرے تک جانے کے لیے آمادہ نہ ہوتی۔ پتہ نہیں یہ اس کی تنہائی پسندی تھی یا احتیاط، یا شاید وہ احساس کمتری کے باعث ایسی محفلوں میں شامل ہونے سے اعتراض کرتی تھی۔ ایک روز وہ عائشہ کو اور اس کی کزن صدف کو اپنے ساتھ اونیل کے ریسٹورینٹ لے گئی۔ وہاں پر عائشہ نے اتنا عجیب رویہ ظاہر کیا کہ وہ حیران رہ گئی۔ نہایت بد تہذیبی دکھاتے ہوئے وہ اچانک اٹھ کر بھاگ کھڑی ہوئی تھی۔ اونیل نے عذرائے اخلاق اسے روکنا چاہا، لیکن وہ کچھ کہے سنے بغیر چلی گئی۔ بڑی بدمزگی ہوئی تھی۔ اسے روکتے ہوئے اونیل سب کے سامنے گر گیا اور اس کا موڈ سخت خراب ہو گیا تھا۔ شیراز نے مذاق میں ایک چھوٹا سا فقرہ اچھال دیا تو وہ ہتے سے اکھڑ گیا۔ اتنے غصے میں اس نے اونیل کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کے ساتھ لنچ کرنے کے ارادے سے آئی تھی، مگر عائشہ کی وجہ سے سارا پروگرام چوپٹ ہو گیا تھا۔ اونیل نے اسے فوراً ہی ہاسٹل چھوڑ دیا تھا۔ راستے میں اس نے کوئی بات نہیں کی، وہ خود خاموش رہ بیٹھی رہی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کوئی ایسی بات نہ ہو اس کے منہ سے نکل جائے جو اونیل کو مزید ناراض کر دے۔ پھر شام کو وہ خود اس سے علیحدہ آ گیا۔ اس کا منہ ٹھیک ہو چکا تھا اور وہ اسے ایک کنسرٹ میں لے جا رہا تھا۔ جاسیہ نے جان بوجھ کر دوپہر کے واقعے کا اشارتاً بھی ذکر نہیں کیا، لیکن باتوں کے دوران خود انیل نے وہ بات شروع کر دی۔ عائشہ کی حرکت پر تبصرہ کرتے ہوئے اس نے کہا تھا، چادروں میں لپٹی ہوئی لڑکیوں میں بڑا گند چھپا ہوتا ہے، اس طرح پہلو تہی کر کے ثابت کرتی ہیں کہ ہم بہت منفرد ہیں، خود کو کوئی خاص چیز بنا کر پیش کرتی ہیں۔ یہ پردے وغیرہ کا اہتمام نمایاں ہونے کا ایک طریقہ ہے۔ اس طرح پوشیدہ ہو کر وہ خود کو مزید ننگا کر دیتی ہے، نظروں کو مجبور کر دیتی ہے۔ ان کی طرف اٹھی دلوں میں تجسس ابھارتی ہیں، ان کا گریز ڈھونگ ہوتا ہے۔ مردوں کو لبھانے کا ذرا مختلف ڈھنگ ہے۔ ان کی ہوش بھری لڑکیوں سے ان کی حویص دوسری لڑکیوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ شریف زادیاں ہوں مائی فٹ، اس نے نفرت سے کہا۔ عائشہ تو بے وقوف سی ہے، پتہ نہیں کیوں اس نے اس طرح سے بیہیویئر کیا۔ اسے اونیل کے اتنے سخت الفاظ پر اعتراض تھا۔ تمہیں کچھ نہیں معلوم تھا، تم کیا جانو ایسی لڑکیوں کے ہتھ کنڈوں کو، اوپر سے شرم و حیا اور اندر گندگی ہی گندگی۔ ذرا سا جو موقع مل جائے تو کسی بھی حد تک گر سکتی ہیں۔ ایسی بہت سی نیک بیویوں کی شرافت سے واقف ہوں میں، نقاب میں منہ چھپائے اجنبیوں کے ساتھ لمبی کاروں میں بیٹھ کر جانے والی بہت دیکھی ہیں میں نے، موری کے ہیرو جیسی ہوتی ہیں یہ۔ وہ بہت تلخ ہو رہا تھا۔ جاسیہ نے خاموش ہو جانا بہتر سمجھا۔ عائشہ کی وکالت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اونیل کا غصہ بجا تھا، اس نے حرکت ہی ایسی کی تھی۔ اگلے روز وہ عائشہ کو پورے کالج میں ڈھونڈتی پھری لیکن اسے تلاش نہیں کر پائی۔ صدف نے اتنا تو پتا چل گیا تھا کہ وہ کالج آئی ہوئی تھی، لیکن نہ جانے کہاں چھپ گئی تھی۔
وہ ہر اس جگہ گئی جہاں اس کی موجودگی کا امکان تھا، مگر وہ کہیں بھی نہ ملی۔ اس کے دو ضروری نوعیت کے ٹیسٹ تھے، اس لیے وہ کلاسز میں جا کر اسے نہیں دیکھ سکتی۔ یہاں ہمارا پارٹ 7 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ بقیہ کتاب صفحہ نمبر 80 سے سماعت فرمائیے۔ شکریہ۔